Namaste and a very warm welcome to one and all in this very special presentation of Nuvoco presents घर बनाओ अपना। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आज हम ड्रीम होम को बनाने के बारे में कुछ और बातें करेंगे, कुछ ज़रूरी टिप्स आपको देंगे। To build and live in your own home has been a lifelong dream for each one of us। और पिछले कुछ हफ्तों में हमारी स्पेशल सीरीज ने आपको अपना सपनों का घर बनाने से जुड़ी सारी जानकारी दी। For this very special episode, we have with us an esteemed panel of experts. So let's meet up with them and then talk to them and learn a little more about building a dream home. First up, Dr. M. Ramachandran, former Secretary, Urban Development, Ministry of Government of India is with us. We also have Mr. Surinder Saini, architect and construction expert, and Mr. Mukul Malik from Asset Yogi, financial expert. Well, it's all about the money a lot of times, isn't it? अब आप सबका बहुत स्वागत है in this very special show. But before we start the conversation with our guests, let's try and do a quick recap over the past few weeks. Namaste and welcome to Nuvoco Presents Ghar Banao Apna, the News 18 initiative. Thank you for partnering with us, but why this endeavor? Why do you want to do this series? So, as India's leading building materials company, we think it's our responsibility not only to educate people about the nuances of building the dream home with quality products and site safety practices, but also facilitate and help them through this journey of building the dream home. Many municipalities and panchayats now require for you to have rainwater harvesting and groundwater recharge facilities within even a home to give you a completion certificate. So you have to ensure that you work with your experts, whether it's the architect or the licensing architect, to understand those specific local laws that are crucial for you to achieve the occupancy certificate of your home. Very important pro tip which I would like to give it to you is to have a solar panel on your roof. That will not only help you heat the water but to generate the electricity as well. And this is a very crucial subject to have the clearances in the end. The banks would have a SOP ready, saying that there will be a general checklist saying that, okay, I need your income tax proof, I need your bank account statements, I need your employment records. They would run the due diligence in the background, and based on your property which you have identified, they would simply have a internal report. Insurance आज की डेट में अगर हम देखता जाएं तो it's an guard against any kind of a calamity, but I think it gives you peace of mind, it gives you security. The only advantage when you take a bundled offer with a bank or NBFC is that it gets into your EMI. You don't have to pay additional amount from your pocket. It can be bundled into your loan itself and that can be processed through your EMIs that you do. जिस तरह हर घर होता है खास, उसी तरह हर घर की नींव होती है अलग। फाउंडेशन इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी हाउस। जब आप घर बनाते हो, आपका ड्रीम होम बनाते हो, तो उसका फाउंडेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए। Always make sure that you have sufficient natural light in all rooms. It not only sort of saves you on your electricity, but it just sort of makes your house more vibrant when you have natural light filtering in. आपके सपनों के घर का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वो समय की कसौटी पर खरा उतरे। जैसे कि आप अपने खुद की ब्लड टेस्ट कराते हो, तो वैसे सीमेंट का फिक्स इंटरवल पे एंड स्टील का टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। Typically, as how doctors are called in at the last minute for emergency issues, similar things happens to us as well. आपके लिए सबसे अच्छा घर वो है जो आपकी पसंद और जीवन शैली का ख्याल रखता है। स्टोरेज प्लेसेस, किचन लेआउट, ड्राई बालकनी, these all are to be thoughtfully designed. Doors are one of those very invisible pieces of furniture which are there, but you don't pay that much attention to it. अब घर बनाने के प्रोसेस को हमने 6 स्टेप्स में बांटा और आपको हर स्टेज पर कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है ये भी बताया। मगर कुछ ऐसे स्मार्ट मूव्स भी होते हैं जो हर स्टेज पर आजमा कर आप कम दाम में बढ़िया काम करवा सकते हो। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स। सबसे पहले परमिशंस एंड क्लियरेंसेस, जहां पहला स्तर है, क्योंकि ये पहला स्टेप है, सबसे पहले तो आपको परमिशंस चाहिए होंगी, क्लियरेंसेस चाहिए होंगी। तो मैं मुकुल जी से पूछता हूं, मुकुल जी आप एक बात बताइए कि प्लॉट खरीदते वक्त कौन कौन से पेपर्स लेने पड़ते हैं जो कंस्ट्रक्शन परमिशन में काम आएंगे? जी हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। जब भी हम प्लॉट लेना चाहते हैं तो डिपेंड करता है पहला तो कि हम किसी बिल्डर से प्लॉट ले रहे हैं या फिर किसी इंडिविजुअल से हम खरीद रहे हैं। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल से खरीद रहे हैं तो शायद हम सेकेंडरी सेल में खरीद रहे हैं।
तो हमें सबसे पहले तो टाइटल डीड चेक कर लेनी चाहिए, यानी कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या है उसका पूरा का पूरा। और ओनरशिप डॉक्यूमेंट या तो सेल डीड हो सकता है, गिफ्ट डीड हो सकता है, या जो भी उसका मेन ओनरशिप डॉक्यूमेंट है वो जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जो भी हमें बेचना चाह रहा है प्लॉट वो उसके नाम पे है कि नहीं। दूसरा, जब भी हम प्लॉट खरीद रहे हैं तो वो पहले भी बिका हुआ होगा, तो इसका मतलब हमें पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहिए कि वो फर्स्ट ओनर से लेके अभी करंट ओनर तक जितने भी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं कैसे वो ट्रांसफर हुआ है, किसी तरीके का कोई फ्यूचर में लीन ना आ जाए उसके ऊपर, यानी कि किसी भी तरीके का कोई लीगल एक्शन ना ले ले उसके ऊपर, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम पूरा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहां पे स्टडी कर लें। फिर कई बार हम प्लॉट किसी बिल्डर से खरीद रहे होते हैं, तो अगर किसी बिल्डर से खरीद रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि उसका चेंज ऑफ लैंड यूज है कि नहीं, यानी कि अगर हम घर बनाना चाह रहे हैं तो रेजिडेंशियल में चेंज ऑफ लैंड यूज उसका हो चुका है कि नहीं। फिर बिल्डर से अगर हम खरीद रहे हैं तो उसने सारे अप्रूवल्स लिए हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट अप्रूवल, लेआउट अप्रूवल, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके अलावा हमारे पास अलॉटमेंट लेटर और पोजेशन लेटर आ जाता है। जब भी हम पहली बार अपना कोई भी प्लॉट खरीदते हैं तो जो भी फर्स्ट ओनर है उसको कोई ना कोई अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, या तो गवर्नमेंट से मिला होगा, या फिर बिल्डर से मिला होगा, या फिर पोजेशन लेटर मिला होगा। कई बार ये दोनों डॉक्यूमेंट एक ही होते हैं, तो हमें ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमें प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट्स देख लेने चाहिए कि टैक्सेस पूरे भरे गए हैं कि नहीं। और बाई चांस अगर लोन लिया हुआ है अगर किसी प्लॉट पे, तो हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जरूर मांगना चाहिए सर्टिफाइड फ्रॉम बैंक, कि बैंक के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा है, तभी हम उस प्लॉट को खरीदने का सोचें। इसमें तो कहीं और भी होगा, क्योंकि ये पेपर वर्क खंगालना ही बहुत बड़ी बात है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑल योर पेपर वर्क इंटैक्ट, क्योंकि एक भी पेपर इधर से उतर गया तो आगे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। एंड यू नो आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस। बट डॉक्टर रामचंद्रन, अनदर एस्पेक्ट व्हिच वी नीड टू कंसिडर इज आल्सो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स. When we are buying a plot of land which we want to build our own home on, the kind of permissions and clearances, as an expert आपकी क्या advice होगी? How can we find all of this कि ये developmental area में है कि नहीं, क्या green zone के कितने दूर है, पास है, is it part of somewhere on the borders of the floodplains area, आगे जाके क्या हो सकता है ramifications? How do we understand this? This is also equally important. First is continuing with what has already been suggested. A master plan, if the city has a master plan, that we have earmarked areas which is residential, which is commercial. So apparently a person would opt for a residential area only if he or she is planning to build a house. So that means one good step is over. And then in other areas where it is not waterfront, one has to look at the basic fact that the plot one is getting is something where a house can be constructed. That fundamental point has to be clear. Without that, just going for a plot, whether it is cheap or what, or well located, or there is a lot of greenery around, so one can opt for that. One has to be clear. But in some places, it could be a reserve forest area, so one has to be careful about that area also, where trees cannot be filled up with problems. So it's always good to consult someone who is aware of it. I hate to say this, but in such areas, it's not an easy task to take a decision by oneself that, okay, I'll go in for construction here without trying to understand it better. But when we look at plots, Dr. Ramachandran, you know, the state says, okay, these are plots which are coming up. We're going to develop these plots. There is also conversion which happens from agricultural in terms of the land use purposes. Is there a shortcut to this? Or this is something which people will have to do a certain level of due diligence? मैं तो ये कहने पाऊंगा शॉर्टकट है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी होता है। अगर गलती से ये समझ करके हम यहाँ पर बना सकते हैं, बनाना शुरू कर दिया और कभी कंप्लीट भी कर दिया, उसके बाद उसको डिमोलिश करना ना पड़े, तो इसके लिए जरूरी है। आपने सही कहा कि कहीं वो खेत का जमीन है तो उसमें हम मकान बनाने जा रहे हैं, या अगल बगल में बनाया, हम सोच रहे हैं हम भी यहाँ बना सकते हैं, तो कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा भी जैसे मैंने बताया, जहाँ पर मास्टर प्लान है वो रेजिडेंशियल में आता है कि नहीं, कहीं कोई रोड लेआउट प्रपोज तो नहीं है, ये भी देखना होगा। तो कुछ इन बेसिक चीजों के बारे में जानकारी करना जरूरी होगा अगर सिंगल इंडिविजुअल प्लॉट पे बनाने जा रहे हैं। अगर कलेक्टिव बनाने जा रहे हैं तो कई चीजें पहले ही समझ में आया होगा कि यहाँ पर बन सकता है। कभी डेवलपर्स इतना ज्यादा गलती नहीं करते हैं, वो पहले समझते हैं कहाँ पर रेजिडेंशियल है जहाँ पर हम बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया जरूर है कि व्यक्ति के लिए, लेकिन एक ग्रुप या एक कम्युनिटी या एक डेवलपर जब प्लॉट एरिया में ले रहे हैं उसमें काफी हद तक इन चीजों को पार किया होगा। और डेवलपर का प्लॉट है तो ये भी आगे
काम आएगा कि वो रेरा का क्लियरेंस लेना होता है जहाँ पर रेरा एप्लीकेबल है, तो उसमें क्लियरेंस में भी ये बात आ जाएगा। तो अब तो कुछ हद तक, एक तो जैसे मैंने बताया मास्टर प्लान, provision for housing areas, and then RERA clearance. These 2-3 things combined together, and sometimes if you are taking a loan, bank clearance. These 3-4 things put together would help you cross that first hurdle, I would say, so that one is constructing a house at the right place where one can construct a house. सुरेंद्र जी, इसमें ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये तो मैंडेटरी होता है, बतौर आर्किटेक्ट आप कैसे सलाह देते हैं? आप कैसे देखते हैं कि भाई पेपर वर्क पक्का है कि नहीं इससे पहले कि मैं काम शुरू करूं? कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें स्टेट टू स्टेट ये देखना पड़ता है वहाँ के जो बायलॉज हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक सेटबैक्स फ्रंट एंड रियर, या साइड सेटबैक तो नहीं है, या हाइट की जो लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ मीटर्स वो कितनी है वो देखनी होती है सर, एंड दी ग्राउंड कवरेज एंड टोटल एफएआर। तो ये 3-4 मेजर पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, और ये सारी चीजें एज ए ओनर उनको बताई जाती हैं ताकि जब हम सीसी लेने जाएं तो हम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बॉडी जो उनके नॉर्म्स हैं हम उनको फुलफिल कर पाए। दीज आर द मेजर वन। कुछ माइनर मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग क्लाइंट क्योंकि चाहता है, क्योंकि उसका इट्स ए ड्रीम हाउस, तो वो छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं और उनको कंपाउंड करके कंप्लीशन लिया जा सकता है। तो मेरी पहली प्रेफरेंस होती है कि मैं इस चीज को लेके अपडेट रहूं, अपनी तरफ भी और अपने क्लाइंट को भी अवेयरनेस बताता रहूं, क्योंकि इंडिया में आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हो रहा है एंड ऑल ओवर इंडिया जो सरकार है वो बहुत ही इनिशिएटिव लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने देखा होगा पिछले 8-10 साल से काम भी कर रही है। जी, सपनों का घर बनाने की बात हो रही है तो पैसा तो खर्च होगा ही। Now that brings us to this step of budgeting and finance. What are those steps that we could save so that we could take so that we save as much money as possible? अब वो बजट फॉलो करें या कोई ऐसा प्लान चुने या कोई ऐसा लोन चुने जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट देता है, ये सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मुकुल जी, आई वांट टू आस्क यू, डू यू थिंक कि चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो थोड़ा बहुत हमें फाइनेंसिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि एक और पार्टी फिर इंटरेस्टेड हो जाती है जो आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस भी करती है? जी हाँ, ये तब ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है कि अगर हम किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं तो वहां पे हमें ड्यू डिलिजेंस के लिए एक और पार्टी आ जाती है। अगर बैंक ने अपना ड्यू डिलिजेंस कर लिया है तो हम भी थोड़ा सा श्योर हो सकते हैं कि अब हम शायद इस वाले प्रोजेक्ट में खरीद पाए। तो मेरे ख्याल से जहां बिल्डर प्रॉपर्टी आ जाती है वहां तो हमें डेफिनेटली बैंक लोन को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, अदरवाइज लोन लेना कोई बहुत जरूरी भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज इट्स अ बिल्डर मेड प्रॉपर्टी एंड देन यू नीड सम बैंकेबिलिटी और सर्टन अमाउंट ऑफ अश्योरेंस, तो अब आप ये देखिए कि कौन कौन से बैंक्स ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है कि हम इस प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपको फंड करेंगे। स्टे विद अस एज वी रिटर्न आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक टू टॉक मोर अबाउट आपके सपनों का घर, ओनली ऑन नुवोको प्रेजेंस घर बनाओ अपना। I wanted to understand from मुकुल, एक बात बताइए, ये लोन ट्रांसफर वाला फंडा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो करंट बैंक है वो आपसे एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा, तभी वो आपका इंटरेस्ट रेट जनरली कम करते हैं। वेलकम बैक टू नुवोको प्रेजेंस घर बनाओ अपना नेटवर्क 18 इनिशिएटिव, जहां बातें हो रही हैं आपके सपनों के घर की। ब्रेक से पहले हमने घर बनाने के कुछ स्टेजेस डिस्कस किए और उस पर हमारे एक्सपर्ट्स के टिप्स भी आप तक पहुंचाए। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेज। एक साधारण व्यक्ति, अगर मैं आपसे पूछूं सुरेंद्र जी, जब आपके पास आता है तो आप क्या पहले उससे पूछते हैं कि तुम्हारा फ्लैट है कि कोठी है? क्योंकि फिर क्या आपका अप्रोच चेंज हो जाता है और उसमें क्या कॉस्ट का वेरिएशन होता है, क्योंकि अमूमन कहा जाता है 2 से 2,500 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट होता है, बट डज दैट ऑल्सो वेरी? या जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो सबसे पहले नोट आउट उसकी, क्योंकि घर बनाना एक ऐसा है कि वो ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कोई अपने एक रूम में भी रह के बहुत ही खुश होता है। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, वो दे डोंट नीड ए बालकनी ऑल्सो, वो कहते हैं यार मेरा रूम ही बस 20 बाय 30 का बना दो। तो पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है डिजाइनिंग करना।
एंड उसी पे ही बेस्ड वी कैन कंपैरिजन द कॉस्ट इज आल्सो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पैरामीटर ये होता है कि मैं किसी के लिए एक फंक्शनल और जीरो मेंटेनेंस घर बनाने की कोशिश करता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग आल्सो। तो कई बार न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, जैसे अभी ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, तो जॉइंट फैमिलीज हैं, तो हमारे पास काफी लोग आते हैं अभी, तो उन सबको देखते हुए हमें ये चीजें को ध्यान रखना पड़ता है। इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपको कट करना चाहिए या आप बजटिंग कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम नो डाउट क्लाइंट से थोड़ा सा आइडिया लेते ही हैं बजट का, एंड मैं स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं सजेस्ट करता हूँ किसी को भी वो कहीं भी थोड़ा भी अपना कॉस्ट कटिंग करे। मतलब स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है कि वो एक स्केलेटन है। मतलब अगर आपके बॉडी में अगर पेट में दर्द है और आपने ऊपर बहुत अच्छी शर्ट पहनी हुई है तो उसका कोई मैटर नहीं है, तो स्ट्रक्चर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग क्या होता है वो हर बंदे का एक बजट होता है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो तो नॉर्थ इंडिया में जो भी चीज विद इन 50-100 किलोमीटर अवेलेबल होती है लोकली, तो अगर हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए चीजों को यूज करेंगे, जैसे अगर साउथ में जाओ तो वहाँ ग्रेनाइट जैसे है वो थोड़ा इजीली अवेलेबल होता है, तो आप उसको वहाँ यूज कर सकते हो। ना कि अब क्या होता है इंडिया में खासकर लोग बहुत ही अपने आप को चाहते तो हैं कि हम ये चीजें लगाएं, लेकिन हम एज एन आर्किटेक्ट एज ए कंसल्टेंट ये सजेस्ट करते हैं। अब जैसे अगर आप हिल्स एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स हों, वुडन के हों, ताकि वार्म फीलिंग आए जी। एंड मेजरली है कि जो आपने बोला कि कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए नो डाउट थोड़ा अगर कोई R&D करे तो जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में या कहीं भी, अगर हम वहां तक पहुंच सकते हैं और डायरेक्ट डील कर सकते हैं तो इट विल बी अ गुड थिंग। अदरवाइज कुछ डीलर्स होते हैं कुछ उस चीज को लेके, एंड जो मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 10-1 साल में जो क्लाइंट भी होता है वो काफी R&D करता है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी IT सिस्टम इज वेरी। अदरवाइज तो उससे पहले आर्किटेक्ट्स की ही ड्यूटी हुआ करती थी कि भाई यू सी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो अभी थोड़ा सा इजी हो गया है वैसे तो अप्रोच करना जो मैन्युफैक्चरर्स हैं असली, तो वहां तक आप पहुंच के, चाहे वो कोई भी आइटम हो, चाहे स्टोन है, आपकी एल्युमिनियम विंडोज हैं, अगर आप फैब्रिकेटर तक पहुंच सकते हो तो आप अपना उस चीज को रिड्यूस कर सकते हो कॉस्टिंग को। No, absolutely. ये information is a boon and a bane. Boon because the client or the person who is trying to build the house वो थोड़ा ही और जानकारी रखते हैं, लेकिन आपके लिए सरदर्द है क्योंकि हर कोई आर्किटेक्ट बन के आपसे बात करता है, क्योंकि तो आपको उनको फिर वैसे समझाना पड़ता है। कई डॉक्टर्स भी यही बात कहते हैं कि भाई सब 5-6 लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेकर आ जाते हैं हमारे पास, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है। कई बार ये भी होता है, बट दैट समथिंग विच इज़ अ हैप्पी प्रॉब्लम टू हैव, क्योंकि जितना लोग रिसर्च करें, जितना लोग पढ़ें, उतना शायद उनको समझ में भी आएगा, अध्ययन करेंगे। लेकिन एक चीज़ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मुकुल, एक बात बताइए, ये लोन ट्रांसफ़र वाला फंडा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि आप एक बैंक से लोन ले लीजिएगा, फिर कोई और आपको ऑफर करे, बोले चलिए हम आपका लोन ट्रांसफ़र करा देते हैं, इंटरेस्ट कम करा देंगे, आप इसको should somebody use it as an effective tool to try and bring down cost of mortgage? जी एक्चुअली देखिए, अनफॉर्चुनेटली बैंक्स नए कस्टमर को बेस्ट इंटरेस्ट रेट देता है। तो आपका जैसे जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट आज की डेट में आपको 8% पे मिला, लेकिन फ्यूचर में 10% का हो गया, तो आपका रेट इंक्रीज तो हो जाएगा, लेकिन जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स डाउन होंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट जनरली बैंक कम नहीं करता है। तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। तो या तो आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक में नेगोशिएट कर सकते हैं, वहां पे आप कहिए कि आप हमारा जो नए कस्टमर को आप जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, या तो आप वो दीजिए हमें, अदरवाइज आई विल मूव माय लोन बेसिकली टू अनदर बैंक। तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन उस पे हो गया, लेकिन वो आपका जो करंट बैंक है वो आपसे एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा, तभी वो आपका इंटरेस्ट रेट जनरली कम करते हैं। तो एक ऑप्शन है कि आप वहां से अपना प्रोसेसिंग फीस देके अपने एग्जिस्टिंग बैंक में इंटरेस्ट रेट कम करा लीजिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम किसी दूसरे बैंक में जो हमें बेस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है वहां पे ट्रांसफर करा लें। देखिए अल्टीमेटली एज अ कस्टमर तो हम यही चाहेंगे कि हमें बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिले, क्योंकि हम हर कोई अपना कॉस्ट कम से कम ही करना चाहता है।
बिल्कुल, वो 0.1%, 0.2% में आपके ड्राइंग रूम में या आपके किचन का कोई सामान निकल आएगा, उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि अगर आप खुद घर बना रहे हैं तो जितना आप इंटरेस्ट आपका कम होता है वो पैसा कहीं ना कहीं और यूज़ भी हो सकता है। अब बात करते हैं फाउंडेशन की। नींव मजबूत हो तो इमारत बुलंद बनती है। द थर्ड स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ फाउंडेशन, और इस स्टेज पर भी कुछ ट्वीक्स करके क्या आप स्मार्ट ओनर ऑफ अ हाउस बन सकते हैं। Let's try and understand this. Ramachandran ji, are there effective schemes when we come up to the foundation stage also, and also when we are looking at from the government, which homemakers can actually avail of, consider? There have been any number of discussions about the building material as such. But this again, I would say depends, it could be two categories. One, whether it is more than one unit construction. That makes a difference. If it is a single unit construction, then one is again going for what is best given the local conditions, what is most appropriate. These days, there are new features which have come up like earthquake resistant buildings. So one has to be aware of this also. If it is an earthquake zone, zone 4 or zone 5 or so, one has to be aware of this and how best to take care of that while building the house itself or laying the foundation itself. Sometimes people may opt for a second or a third floor sometime in the future. So the provision has to be made at that stage itself. What material to be used? Again, I mean, there are extremes where some locally desired material can be used, but there are materials which make the building sound. So again, one has to make a proper selection and also look at the cost part of it. Sometimes these are days of stilts and things like that. If it is more than 1 or 2 floors, so like in Delhi, there is a provision now. You have to have a stilt where parking can happen, and the actual first floor becomes the ground floor. Yeah. So there are certain requirements as far as local bodies are concerned. Bigger cities, now you have to have parking space. You have to provide for parking space. So it all depends on these factors. What type of foundation you going for? Whether it is the traditional foundation where you dig the soil and then do it, or you're going for other methods where you go further up. It depends on the size of the building which you are having in mind. No, absolutely. But सुरिंदर जी, आपने कहा देखिए फाउंडेशन पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो इसका कोई फॉर्मूला है कि बेस्ड ऑन योर जोग्राफिकल लोकेशन आपका फॉर्मूला चेंज होता है, और इज देयर अ स्टैंडर्ड अप्रोच टुवर्ड्स foundation for your home? See, for the foundations, first of all, what I need is कि जो soil testing होता है, जहाँ आपका घर बनने वाला है, जहाँ आपका ड्रीम होम बनने वाला है, तो वहाँ की soil कैसी है, मतलब loose है, hard है, या तो अगर soil testing के behalf पे जो मेरा structure consultant होता है, तो वो एक डिसीजन ले सकता है कि मतलब अगर आप अपनी सॉइल टेस्ट, क्योंकि नॉर्मली घर में लोग सॉइल टेस्ट नहीं कराते हैं, बट मैं हर किसी को ये सजेस्ट करता हूँ कि सॉइल टेस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी सॉइल टेस्ट हो रखी है तो उसके ऊपर में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हायर करना होता है, ताकि वो सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट के बिहाफ पे आपके लिए अच्छी नींव, अच्छी बुनियाद के साथ इमारत को डिजाइन कर सके। क्योंकि बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग एन स्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स, हम आपके ड्रीम, आपका जो सपना होता है उसका हम पूरी लाइफ कमिट करते हैं कि आपकी बिल्डिंग में एक क्रैक नहीं आएगा। करेक्ट, यस। तो एक अच्छा कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है उस घर को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट को हायर करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशंस की कॉस्टिंग को भी रिड्यूस कराएगा, बीइंग ऑन हर और हिज एक्सपीरियंस। Yeah. Sometimes it's not just about the cost. It's not about how much you're spending. It's about how you're spending and where you're spending. And कई बार आप ऑप्टिमाइज कर भी, अगर आप जैसा आपने कहा कि अगर आपको ग्राउंड ग्रेडियंट, आपका एंगल और इसकी अगर समझ हो, और फिर आप डिसाइड करें, और फिर जितना आपकी ऊपर इमारत बनेगी उतनी ही नीचे आपका फाउंडेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कैसे उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे based on is also going to depend on the size of the structure that you're going to build above. तो ये सब भी आता, तो इसीलिए चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं, and I'll start with Surinder ji and then go to the other panelists. Design layout और floor area ratio या FAR जिसे कहा जाता है, ये भी चेंज होता रहता है। So when you design a house, एक तो फाउंडेशन कि भाई आप
2-3 माले की बना रहे हो, कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई 3 माले तो अभी बना रहा हूँ, आगे का भी ऑप्शन छोड़ दो, तो वो कैसे प्लान करें? एंड देन अभी का फ्लोर एरिया रेशियो आपको कहेगा देखिए आप 100 गज की एरिया के अंदर आप मान लीजिए आप 70 गज बना सकते हैं, लेकिन फिर वो आगे जाके चेंज भी हो जाएगा, तो फिर उस वक्त क्या आपको तोड़ के फिर बनाना पड़ेगा, या इसको आप डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं? नहीं, हम उसको डिजाइन में फर्स्ट डे से कंसिडर करके चलते हैं। एंड क्योंकि क्या है कि अप टू डेट रहने का ये फायदा है, जैसे पिछले 8-10 सालों में FAR चाहे दिल्ली हो या NCR हो जल्दी चेंजेस हुए हैं, तो हम उस चीज का वन गो प्रोविजन लेके चलते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड कवरेज ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑल्सो। जैसे अभी कुछ मान लो किसी का 3rd फ्लोर है, अभी गवर्नमेंट ने 4th फ्लोर अलाउ कर दिया, तो हम फाउंडेशन, चाहे बंदा कोई भी कस्टमर है वो अगर 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाना या प्लान करता है, तो हम पहले ही उस पे ना 1.5 से 2 स्टोरी का फाउंडेशन लेके चलते हैं और उसको बता के चलते हैं, ताकि उसको भी ये पता रहे। कई बार क्या होता है, क्लाइंट फिर भी बोल देता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, तब एक अलग बात है, लेकिन हम 99.9% उस चीज को फाउंडेशन में भी लेके चलते हैं ताकि वो फ्लोर एक्सटेंड कर सके। और इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड कवरेज ऑल्सो वी टेक द फाउंडेशन इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स एंड टाई बीम्स, प्लिंथ लेवल, वो सारा उसको प्लानिंग में लेके चलते हैं ताकि वो कल को एक्सटेंड कर सके, यूटिलाइज कर सके। क्योंकि लैंड जो है वो इतना एक्सपेंसिव हो गया है, तो कम से कम जो कारपेट एरिया उसको हम अचीव करके दें, बीइंग एन आर्किटेक्ट। करेक्ट, बट ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम इंडिविजुअल होम्स की बात कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू अ कॉन्डोमिनियम और इट कम्स टू अ फ्लैट सिस्टम और समथिंग व्हिच द बिल्डर इज बिल्डिंग एज अ सोसाइटी, देन तो फिर वो आप लिमिटेड है। अगर आप वो 4-5 एकड़ के प्लॉट पे बना रहा है तो फिर दैट ही विल हैव टू फॉलो द नॉर्म्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल बी 1 or 2 towers plus green area etc. But the design, layout and also use of the FAR, does that impact funding of a project, financing of a project? मुकुल जी देखिए, ये डिपेंड करता है। आज की डेट में अगर कोई फंडिंग उठा रहा है कोई बिल्डर किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो उसी पे उठाएगा जो करंट FAR के हिसाब से वो चीजें बना रहा है। लेकिन अगर वो फ्यूचर में अगर FAR बढ़ जाता है, मान लीजिए जैसे दिल्ली के अंदर अभी FAR बढ़ा है और काफी सारे सोसाइटीज में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे लोग बना रहे हैं और खुद से ही खर्चा करके लोग बना रहे हैं। करेक्ट। लेकिन बिल्डर के केस में जब RWA के पास मोस्ट लाइकली वो शिफ्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो RWA अगर वो कंबाइन करके बनाते हैं तो आई थिंक RWA को ही उस टाइम पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। फंडिंग पे मेरे हिसाब से ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो डिजाइन जो करंट डिजाइन है उसी के हिसाब से उसको फंडिंग मिलेगी। Okay, but Dr. Ramachandran, sustainability, is there, because the government has a building code and you have to plan around that. But how much is using sustainable materials, having a minimum carbon footprint or as a green project, if I can say it, is that incentivized? This is again dependent on the local bodies. There are some local bodies which provide some consideration for this. But unfortunately, local bodies essentially concentrate on generating the revenue through property tax. The concessions given are in the property tax or maybe at the time of completion. It has not become a common factor in our cities that these are all encouraged and there is provision for that, so that one consciously decides to opt for that. Because the local bodies are just sort of existing on the basis of this type of revenue. Like, as I said, green buildings, that should really get incentivized, and there should be lots of incentives for people to opt for such facilitation. May not get an individual level, but if it's a complex, there is a lot of scope for that. Reverting to the other point, while looking at FAR, naturally one needs to be guided about that. Right. One has to look at the parking requirement also. In a city like Delhi, where roadside parking was the rule of the day, which is slowly changing, you have to provide for enough number of vehicles to be parked, and that's why I refer to the still parking and things like that. There is something called ECS, how much of parking space one should have per flat or per area of total constructed area. That's also important, because now everyone wants to own a car, so where do you park the car? You cannot take it for granted that it will be parked on the road. Correct. So the FAR factor, the setback which has to be left, some people try to compromise on setback. It's a must and it's a requirement, and it's for the safety of people living in that building.
And staircase requirement, you may have lift, but in staircase also is a requirement, and staircase should be through in case of fire and things like that. So there are so many such factors which ideally I would think an architect would guide the client concerned that these are the requirements you have to adhere to. You cannot compromise on this. You cannot have, you would have seen some buildings where there is no space left for a staircase, and later you add a staircase using the setback space also, which is incorrect. So that's why in some places later when the local body decides to go and check, there could be ceiling and things like that. You remember in Delhi, certain areas, lots of buildings were sealed because they did not bother for the requirements as far as construction and approval is concerned. So these are factors about which I would say, I mean, this may not be common knowledge. One has to get guidance, and on that basis. So similarly, reverting to the point you raised, what are the features which I should incorporate in today's construction? That is something which people have to be aware. और उसके बारे में उतना ज़्यादा व्यापक जानकारी लोगों तक नहीं है, सीमित है, तो किसी के पास जाना पड़ता है, एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, और वो भी जैसा अभी बताया गया कि वो कई ऑप्शंस दे देंगे, कई ऑप्शंस का कॉस्ट भी उस तरह वेरी करेगा, तो चॉइस उसी क्लाइंट को ही बनाना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति जाता है तो उसके ऊपर दबाव ज्यादा होगा, लेकिन 10 लोग मिलकर के बनाने के लिए जाते हैं तो वो बैठकर समझ सकते हैं और कहाँ पर कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट सेविंग हो सकता है वो डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शंस आर मेनी, बट वन कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द लोकल बॉडी अलोन टू फॉर द इंसेंटिव पार्ट ऑफ इट। देयर मे बी अ मार्जिनल इंसेंटिव, but that may not be all that encouraging. True, but we are also a very vast country, that is India. To build his dream home is one of the biggest decisions in the life of a common man. So make the right decision. Stay with us as we return after a very short break to talk more about आपके सपनों का घर, only on Nuvoco presents घर बनाओ अपना। अगर आप बिल्डर से घर ले रहे हैं तो जो बेसिक फिनिशेस हैं वो उसी से ही लेनी चाहिए। वेलकम बैक टू नुवोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना नेटवर्क 18 इनिशिएटिव, जहां बातें हो रही हैं आपके सपनों के घर की। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप नाउ, वेयर we have great diversity, especially physical features. We have dry deserts, we got lush green forests, tropical climate, dry climate, humid weather, snowy mountains, long coastlines, and of course we have the fertile plains. Now so much of geographical diversity, और इसकी वजह से हमारे हर क्षेत्र का घर एक दूसरे से अलग दिखता भी है और अलग तरीके से बनता भी है। जगह, मौसम या टेरेन को देखते हुए वाटरप्रूफ घर कैसे बनाए जा सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो डॉक्टर रामचंद्रन, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड या गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त कॉन्ट्रैक्टर क्या इज ही अ मस्ट, या फिर इंडिविजुअल हाउस में सिर्फ एक्सपीरियंस ठेकेदार चल सकते हैं? कोई मस्ट मैं कह नहीं सकता, मेरे ख्याल में ऐसा कोई मस्ट कहीं ले डाउन नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जिसको इन चीजों के बारे में जानकारी है और जो कंस्ट्रक्शन के समय रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से कंस्ट्रक्ट कराना जरूरी होता है। साधारणतः हमने देखा है कि शहरों में कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का स्तर भी डिफरेंट होता है कि कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स माने जाते हैं जो अच्छा कंस्ट्रक्शन करके दे देंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज करके दे देंगे जिसमें बाद में भुगतना पड़ सकता है, कहीं सीलन शुरू होगा, कहीं और कोई प्रॉब्लम होगा, कंस्ट्रक्शन में मटेरियल प्रॉपर यूज नहीं किया होगा, उसको सर्टिफाई नहीं किया होगा, इस तरह के कई फैक्टर्स हैं। तो वो भी एक चॉइस है, जो अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है उस प्रकार के व्यक्ति या कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कराएं। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर उस चीज को भी ध्यान में रखेगा कि जो अप्रूवल का कंडीशंस क्या है उसको ध्यान में रखते हुए वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, और मटेरियल जो आपसे एग्री किया है वो उसके अनुसार करेंगे, और वो साबित करेंगे कि मैंने इसी तरह का मटेरियल यूज किया है, और वो सब कंप्लीशन लेते समय काम आएगा व्यक्ति को कि ठीक है इस आदमी ने मुझे अच्छा बना करके दे दिया है, हालांकि कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो गया है लेकिन बनाए तो अच्छा ही है कि, और जब हम उसमें रहेंगे 15, 10, 20 साल जो भी हैं, जब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा तब समझ में आएगा कि ये ठेकेदार जिसने बनाया अच्छा था। जी, अब देखिए आपने जगह खरीद ली, आपने वहाँ पर फाउंडेशन खड़ा कर दिया, धीरे से इमारत भी बना दी, फिर बाकी सारी जो सहूलियतें हैं उसको भी इंश्योर कर दिया, परमिशंस आपके हो गए। अब घर को सजाना भी तो है,
फिटिंग्स फिक्सचर्स लगाने हैं, दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप. एंड सुरिंदर जी, आप मुझे बताइए कि व्हाट शुड आई डू? अगर मैं किसी बिल्डर से घर ले रहा हूँ तो सिर्फ बेयर शेल लेकर खुद बनाऊँ, या फिर अगर बिल्डर मुझे कह रहा है देखिए हम आपको ये सारी फिटिंग्स लगा कर देंगे और इसको ऐसे करेंगे, तो उसके लिए एक्चुअली सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो बल्क में ले रहा है. कैसे करूँ इसको? फर्स्ट चॉइस तो यही होनी चाहिए कि अगर आप बिल्डर से घर ले रहे हैं तो जो बेसिक फिनिशेस हैं वो उसी से ही लेनी चाहिए. और ये होता है कि क्लाइंट का जो थोड़ा टेस्ट वेरी करता है वो सॉफ्ट फर्निशिंग में करता है, जैसे कर्टन्स हैं, मूवेबल फर्नीचर्स वगैरह ये सब. लेकिन चाहे फॉल सीलिंग है, कुछ वॉल पैनलिंग्स हैं, जो एक क्योंकि क्या होता है बिल्डर जनरली रॉ दे देता है, बट रॉ के भी 2 स्टेजेस हैं. कई बिल्डर्स क्या करते हैं बेयर शेल बना के दे देते हैं, कई फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग और इनको कंसिडर करते हैं. और उसके बाद भी कई लोग किचन, कबर्ड्स और वुडवर्क का काम छोड़ देते हैं. तो एज ए माय सजेशन कि जो वुडवर्क और जो बेसिक एमिनिटीज है वहां तक करके देना चाहिए. लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे किचन है, किचन में वुडवर्क वगैरह करके देना चाहिए, सिंक लगा के देना चाहिए. बट चिमनी है, चिमनी कोई एक लेडी की कोई और डिजाइन का प्रेफरेंस हो सकता है, तो वो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से सिलेक्ट करके दे सकते हैं. बट जो बेयर है वो नो डाउट बिल्डर करके देगा तो घर बनाने में इजी रहेगा अपने उसको ओनर्स को. लेकिन इसमें अगर वो मॉड्यूलर किचन बना रहा है या फिर आपको एमिनिटीज़ एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसको मैं कंसिडर करूं कि नहीं करूं? लेकिन क्योंकि यहाँ पर लेट मी ब्रिंग इन द फाइनेंस एक्सपर्ट इन ऑल्सो, क्योंकि मुकुल जी लॉट ऑफ टाइम्स बजट गड़बड़ा यहाँ जाता है बिकॉज एवरीथिंग एल्स तो CLP है, दैट मीन्स अ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है इफ आई एम गोइंग विद द बिल्डर्स प्रोग्राम. अदरवाइज बाकी सब मेरा मटेरियल खर्चा सब मैं एडजस्ट कर सकता हूँ. ये इंटीरियर्स का काम जब आता है तभी बजट गड़बड़ा जाता है. कई बार जो है इट गोज 20-30% ऑफ द एस्टिमेट. सो हाउ डू वी प्लान दिस? जी आई थिंक इंटीरियर्स एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत पर्सनल टेस्ट मैटर करता है. तो अगर पर्सनल टेस्ट मैटर कर रहा है तो आई थिंक फिर शायद बिल्डर वाला ऑप्शन लिमिटेड हो जाता है लोगों के लिए. फिर लोग शायद चाहेंगे कि मैं अपने हिसाब से मॉड्यूलर किचन बनाऊं और अपने हिसाब से सारे इंटीरियर्स कराऊं, वेदर फिक्स्ड और सॉफ्ट फर्निशिंग, जैसा भी एक पैनलिस्ट ने भी बोला. तो अगर कोई इंडिविजुअली करा रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1-2 ऑप्शंस होते हैं उसके पास. पहला तो वो सारा कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम करा रहा है, वो थोड़ा सस्ता ऑप्शन होता है. मटेरियल भी वो खुद जाके सोर्स कर रहा है और वहां पे अपना टाइम और एफर्ट लगा रहा है, लेकिन उस टाइम और एफर्ट की वजह से उसका थोड़ा बहुत सेविंग हो जाती है. दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई किसी इंटीरियर डिजाइनर को, आर्किटेक्ट को हायर किया जाए. वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में रियलाइज किया है कि कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 2 to 2.5 टाइम्स हो जाती है आजकल. इनफैक्ट ऑनलाइन डिजाइनर्स भी काफी आ गए हैं मार्केट में, तो थोड़ी सी कॉस्टिंग हमारी वहां पे बढ़ जाती है. लेकिन मेरे को एक बीच में यहाँ पे एक मिडिल पाथ भी नजर आता है जहाँ पे हम एक अच्छा डिजाइन भी ले सकते हैं और साथ में हम कॉस्ट सेविंग भी ठीक ठाक कर सकते हैं कि हम एज अ डिजाइन कंसल्टेंट हायर कर लें किसी इंटीरियर डिजाइनर को. तो वहां पे मे बी 5% से 10% की हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट एज अ डिजाइन कंसल्टेंसी हम पे कर सकते हैं और वो हमें एज अ कंसल्टेंट गाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा मटेरियल लगाएं, कहाँ से उसको सोर्स करें, कहाँ से हम अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली कराएं. तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा आ जाता है. कंट्रोल आ जाता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा पड़ती है उसमें, फिर जूते ज़्यादा घिसने पड़ते हैं और फिर धूल भी ज़्यादा चाटनी पड़ती है. सो दैट इज़ द काउंटर पार्ट. तो इफ़ यू वांट टू सेव अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉस्ट देन you've got to get your hands dirty and dive deep into the whole thing. But from the time that you identify a plot and you decide on the design, you get source the material, build the foundation, घर खड़ा हो गया, उसको आपने सजा भी दिया, अब वहाँ पर जाके रहने की बात है. So this has been a fantastic conversation as we bring to a culmination a very, very engaging series. To build a home of your own could be a difficult, complex process, but with the right people and right advice given and taken, ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र बन सकता है. We hope कि इस discussion के बाद, if you follow all that we have learned today and in the past few weeks, our dream home will surely become our reality. Thank you all for being a part of this very special campaign, Nuvoco presents Ghar Banao Apna, a Network 18 initiative.
Yeah, see, obviously banks will calculate 50% of your salary as a potential EMI, right? But हम लोगों को थोड़ा सा और उससे ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए. आइडियली मैं समझता हूं कि अगर आप 35% तक यानी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर सैलरी EMI में देंगे तो आपके पास एक बफर हमेशा बना रहेगा. कोई भी इमरजेंसी आती है, देखिए आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ले ऑफ्स भी हो रहे हैं. अब ले ऑफ्स हो रहे हैं, इसका मतलब कोई भी अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो इतनी सिक्योर्ड नहीं है. तो अगर किसी भी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास एक बफर हमेशा होना चाहिए. तो मैं समझता हूं ऑन दी कंजर्वेटिव साइड हमें अपने सैलरी का खाली 35% ही EMIs में भरना चाहिए. और ये मैं टोटल EMIs बोल रहा हूं, जिसमें अगर हमने कोई कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, कोई पर्सनल लोन लिया है, तो टोटल EMI हमारी 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अपनी मंथली इनकम का. सोलर पैनल को जैसे कि गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है पिछले 10-15 साल से, तो सोलर पैनल से नो डाउट इट्स एनर्जी सेविंग ऑल्सो. और उसके लिए मेन वायर्स का कंसिडरेशन ये रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हीट इंसुलेशन है, क्योंकि वो पूरा सन में एक्सपोज्ड होती हैं वायर्स, तो सोलर के लिए जो वायर्स हैं वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, ताकि सन का जो रिफ्लेक्शन या जो है ओपन में जब भी आप सोलर लगाते हो तो नॉर्मल क्या होता है कि जो घरों की वायर्स होती हैं वो इंडोर एरिया को कंसिडर करते हुए कंपनीज बनाती हैं. तो सोलर के लिए थोड़ा सा इंसुलेटेड होनी चाहिए वायर्स, ताकि वो हीट ना ऑब्जर्व कर सके. हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत प्रयास यही है कि उन सब लोगों को जो वर्षों से या काफ़ी समय से जिनके पास कोई स्थान नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, स्लम में है या किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को एक मकान उपलब्ध हो जाए, वो मकान का मालिक बन जाए. लेकिन उसके ऊपर जो लो इनकम ग्रुप हैं, मिडिल इनकम ग्रुप हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन देते हैं. इनकम के आधार पर जो लिमिट है, जो बैंक से या किसी संस्था से लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, उस पर सब्सिडी देने का भी एक व्यवस्था है, जिससे कि एक सुनिश्चित मार्ग से चलकर लोग अपना मकान बना सके, चाहे वो लो इनकम कैटेगरी या मिडिल इनकम कैटेगरी में. और टैक्स के मामले में जो हम टैक्स देते हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति टैक्स के ब्रैकेट में आता है, उसमें भी कुछ सुविधाएं हैं, और अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इसमें और सुविधाएं देते हैं, तो वो अलग अलग राज्यों से इसकी जानकारी करना पड़ेगा. कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट्स एम्फेसिस, जो मुख्य बल है, वो जिनके पास कोई मकान नहीं है, जो स्लम वगैरह में रह रहे हैं, उनको मकान उपलब्ध करा दिया जाए. ये जो 2015 से 2022 तक के हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत, उसके साथ साथ जो कम आमदनी वाले हैं या मिडिल इनकम आमदनी वाले हैं, उनको भी अपने मकान बनाने में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है. काफी सारे फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली. फर्स्ट इज डेफिनेटली योर सिबिल स्कोर. सिबिल स्कोर में अगर आप अपने सारे EMIs टाइम पे देते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड टाइम पे पेमेंट करते हैं, तो आपका ऑब्वियसली होम लोन आसानी से अप्रूव हो सकता है. अगर आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है तो आपको काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स भी मिलते हैं. फिर दूसरा आपका आ जाता है कि आपका टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस होता है, आपका टाइटल वगैरह क्लियर है कि नहीं प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी किस जगह पे लोकेटेड है, वो आसानी से उस पर लोन हो सकता है या नहीं, उसका टाइटल फ्री होल्ड है कि नहीं, तो आसानी से आपका लोन हो जाता है. फिर आपके आ जाते हैं पर्सनल, कि आपको लोन एलिजिबिलिटी कितनी होगी, यानी कि आप अपनी कितनी EMI भर सकते हैं. सो वो डिपेंड करता है कि आपने कोई और लोन लिया है कि नहीं और आपकी सैलरी कितनी है. विच मीन्स सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख अगर किसी की सैलरी है, 1 लाख पर मंथ वो अगर कमाता है, तो उसमें से 50% तक वो EMI में भर सकता है. दैट्स हाउ ऑल द बैंक्स कैलकुलेट योर EMI पोटेंशियल. So suppose out of 1 lakh you can pay 50,000 in your EMIs, and if there is already an EMI of 10,000 per month which is going on, that means कि आप खाली 40,000 ही अब EMI में भर सकते हैं. So 40,000 अगर आप EMI में भर सकते हैं तो आपको लोन कितना मिलेगा. So इसमें भी एक रफ कैलकुलेशन होती है. अगर आप कोई 20 years का लोन ले रहे हैं होम लोन, तो उसमें आपका मतलब जितना भी आप लोन लेंगे उसका हर 1000 रुपीज पे आपको 1 रुपी EMI भरना है. So यहाँ पे आप रफ कैलकुलेशन देख सकते हैं
कि अगर आप 20 लाख का लोन ले रहे हैं तो उस पे आपकी आएगी ईएमआई करीब 20,000 की। तो यहाँ पे अगर आप 40,000 की ईएमआई भर सकते हैं तो 20 साल का लोन, इसका मतलब आपको करीब 40 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। सो ये आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना आपको टोटल होम लोन मिल जाएगा।